ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ پیروڈی فلم سے، اور آج کی پیروڈی ہے ہیر رانجھا، جبکہ آج کا سیٹ ہے چاچے قیدو کا گھر. اور سنا سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، تو یہ بنگڑ بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہ کرو، پھپھی ہے میری. او ہو، میں ان کی بات یہ پھپھی ہیں آپ کی؟ ہاں جی. پھپھی جی چنیوٹو آئے نے ایتھے اچھا، سال لینڈ. اور جیڑا تسی یہ ٹیر جیا ویکھ رہے ہو، اے چاچے قیدو دی بیوی ہے، مسز قیدو. اچھا. زلزلہ تو نہیں آیا؟ نہیں، میرے خیال چاچی اٹھی ہے. آرام نال چوتھی منجی ہے. جدو تہاڈی چاچی نال میری شادی ہوئی ہے. اوئے ہوئے ہوئے. لوکاں نے بھی کیا اوئے ہوئے ہوئے. کیونکہ میں بھی کیا سی اوئے ہوئے ہوئے. اور تے اور جڑا مولوی سی نا، انہیں بھی آکھیا اوئے ہوئے ہوئے. اے پھپھی جڑے نے انہاں بھی آکھیا سی اوئے ہوئے ہوئے. اچھا، تہاڈوں پتہ چاچا قیدو پہلے لنگڑا نہیں سی، اچھا. چاچی ہے تے ڈیگ پئی. پھپھی جی لاؤ دو کش. میں نہیں پیندی. اصل تے پھپھی نا چرس تے لگی ہوئی ہے. اور پندی نہیں بیچتی ہے. تو میں پہلی باری ویکھیا نا، اچھا. میں 2 گھنٹے ویکھدا رہا. کیوں دیکھتے رہے؟ میں سمجھنے دی کوشش کر رہا سی ہے کی. چاچی نے کہا منو کھائی نہ، میں تیرے نال ویاہ کر لوں. ہیر پتہ نہیں کتھے رہ گئی ہے. سویر دی گئی گندلا لین. آ جاندی. آج کل ہیر کی مصروفیات ہیں کیا؟ ہیر دی سمجھ نہیں آ رہی، نہ رانجھے نو لفٹ کرا رہی نہ کھیڑے نو. ادھر راجے نو بھی لفٹ نہیں کرا رہی. وعلیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ہیرے بڑی دیر لا دیتی ہو. جا کے ہانڈی ویکھ ہن تے نالے او دال چک کے پھپھی نوں پھڑا دی، چگ دے گی. یہ لو پپو، اور آپ سنائیے، یہ بلوچستان والے کی تو چھٹی ہو گئی، جی خود ہی استعفیٰ دے دیا انہوں نے. تو یہ پنجاب والا کب دے گا؟ پتہ نہیں کب دے گا، ہو سکتا ہے نہ ہی دے. جیویں رانجھے دا مکو ٹھپیا ہیر سیال، ایویں پنجاب والا ٹھپو ہے پیر سیال. اچھا، یہ شیر بھی ہے. ویسے جتنا پنجاب والے پیر سیال سے ڈر رہے ہیں نا، اور انہیں ڈرنا چاہیے، لیکن ایک خطرہ اور منڈلا رہا ہے، اور وہ 17 تاریخ والا. قادری صاحب والا سر. جی، قادری صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اب یہ معاملہ بننے نہیں لگتا میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا. اور ان سے وعدہ لیا گیا ہے. چلو لیا گیا ہے یہ بہرحال. تو پھر پنجاب والے کی بھی چھٹی سمجھے؟ مجھے یہ نہیں پتا، یہ تو ایسی ایک تبصرے ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ فیبروری سے آگے معاملہ چلتا دکھائی نہیں دیتا. ہجے تہاڈوں پتہ نہیں؟ مجھے واقعی پتا نہیں ہے. ہر گل دا تہاڈوں پتہ ہوندا ہے. میرا گیس ہے بھائی، میرا گیس ہے. میں کوئی نجومی تھوڑی ہوں. آج نجومی تو یاد آیا، کھیڑا آج کی دے. اب نجومی سے تمہیں کھیڑا کیوں یاد آیا؟ آج تسی قصہ نہیں سنیا کھیڑے تے نجومی والا؟ یار یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے. اے بھائی ہوراں دا تیسرا پرائیویٹ معاملہ ہے. اس میری پھپھی نہ کوئی گل نہیں کر رہا ہے. تہاڈوں پتہ چنیوٹ جوا بھی کراندی ہے. میں ذرا مجھان پٹھے پاواں. السلام علیکم چاچا قیدو، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو سنا رانجھیا؟ او کی سنانی یار قیدو، کاش مینوں پتا ہوندا کہ انصاف لینا ایڈا مہنگا کام ہے. آپ کو اب کیسے پتا چلا؟ اے وکیل ویکھو، اور مینوں تے ٹھگ کے کھا گئے نے کچا. 3 بار تم اقتدار کے جھوٹے جھوٹ چکے ہو، ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ انصاف کتنا مہنگا اور مشکل ہے یہاں پہ. اسے آسان اور سستا کرنے میں تم نے کیا کیا بھائی؟ اور سنو عقل ہی ہون آئی ہے تے اگلی بار انصاف نہ بھی نپڑ داں گے. انصاف سے نہیں، پہلے تو تحریک انصاف سے نبڑو. ویسے اس میں رانجھے کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا، اس نے زندگی میں پہلی بار وکیل کیے ہیں. پہلے کیا کرتا رہا ہے؟ پہلے اس نے جب بھی کیا ہے جج ہی کیا ہے، وکیل کبھی نہیں کیا. واہ واہ واہ. اوے جدوں دا تسی مینوں کڈیا اے ویکھ لو پورا سسٹم رک گیا جی. تمہارے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، جب تم تھے سسٹم تب بھی رکا ہوا تھا. اور سچ پوچھو تو پچھلے 20 سال سے سسٹم رکا ہوا ہے. سب بکواس ہے، جمہوریت کے نام پہ، گورننس کے نام پہ، اکانومی کے نام پہ. اصل میں وہ جو گئے وقتوں میں لوگ ہوا کرتے تھے بڑے باکمال تھے. میں چند دن پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، ایک بڑا شاندار کنکلوژن اس میں کہ گئے وقتوں میں جیسے یہاں پہ گورنر تھے نواب آف کالا باغ، یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت اس ادھیڑ بن میں رہتے تھے کہ کس طرح سے اچھے لوگ لائے جائیں
अच्छे से अच्छे लोग अपनी टीम में, शर्त ये कि वो बेहतरीन हो, डिलीवरी बेहतरीन करें। ये नवाब ऑफ कालाबाग के बारे में कहते हैं कि वो हर वक्त ये सोचते रहते थे कि ये हमारे लिए, ना कि मेरे लिए, किस कदर कारामद साबित हो सकता है। मैं इसकी लियाकत से, मैं इसकी जहानत से, दयानत से कैसे फायदा उठा सकता हूं। चुनांचे आप रिजल्ट देखिए, उन्होंने कैसे कैसे शानदार ब्यूरोक्रेट्स दिए आपको, कैसे लाजवाब पुलिस ऑफिसर्स जो लेजेंड्स थे, आज भी उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। आज भी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की जब मिसालें दी जाती हैं तो क्या वजह है कि अच्छा अफसर आपको 25-30 साल पुराना ही मिलेगा। इस दौर का अफसर प्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता, इस दौर के अफसर का नाम क्यों नहीं लिया जाता। और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी बेचारे क्या करें, उन्हें पता है कि हमारी अपॉइंटमेंट एक सिस्टम ने नहीं करनी, एक शख्स ने करनी या उसके बेटे ने करनी। जाती वफादारियों का चक्कर है जी। ये किया है आपने मुल्क के लिए जितना नुकसान करप्शन के जरिए किया है ना, वो इसका उशरे शीर भी नहीं जो आपने ये बेड़ा गर्क किया है। और फिर ये जो जलालत कसूर में हुई है चंद दिन पहले, वो भी इसी का शाखसाना है, एक ऐसी चीज जिस पर पाकिस्तान आपको कभी माफ नहीं करेगा। फुफी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तो बड़ी मुतासर हो रही है। ਫੁੱਫੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਆਓ ਬੈਠੇ। ਆ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ। ओहो आज पता नहीं फुफी ने दाल चौकी कढ़ना। ਕੱਲ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਦਾਲ में से। हाँ जी। ए फुफी स्कूटर ते बह के मोबाइल स्नैचिंग भी कर दी। ए फुफी छोटी जी पीरनी भी गई। यार ये पीरनी तो याद आया, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ? ਓਏ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲ। क्यों दर्जी के पास क्यों? ਅਗਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा खेड़े की शादी पर कितना एतराज है रांझे को, हाँ, और छोटे भाई को देखे हाफ सेंचुरी करने वाला शादी में। और उन्हें हाफ सेंचुरी करके बैट उत्ते कर देना है। हीरे अजा के वेख तेरी चाची मझा खांदी तो नहीं पी अन्ने वाह। ਹੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। अबे राजा तुझे पहले तो बताया है, तेरा कोई स्कोप नहीं, कोई स्कोप नहीं है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀਰੇ। ਓਏ ਹੀਰੇ राजे ने दे तो जलील होना जी। भाई कर्मा वाली औरत, एक तुम्हारी चाची ते एक मेरी फुफी। फुफी आई तो 2 साल पहले फुफा सी, ए चिंची चलाता होता सी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ये रांझा मैंने ज्यादा ही मायूस लगा है। इसलिए कि मामलात एक तंग गली में दाखिल हो चुके हैं, बल्कि नवाज लीग के लिए ये तंग गली डंजन साबित हो रही है। देखें उधर से बलूचिस्तान के मसाइल, नए केसेस सर उठा रहे हैं। कोई बईद नहीं कि अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ रेफरेंस आ जाए। ये गैस वाला? हाँ जी। फिर कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो रहा है, तकरीबन 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। और ज़ईम कादरी की भी खबरें आ रही हैं। ज़ईम कादरी का मुझे अफसोस हुआ। ज़ईम कादरी एक नफीस आदमी, पंजाब में भी कोई करप्शन का मामला पकड़ा गया है। CNW का मामला है, कोई 1.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। ये जो MPAs को नवाजा गया है वो क्या था जी? सर 11 अजला के MPAs और MNAs को ठेके दिए गए सड़कों की तामीरात के लिए। उन्होंने 1.5 गुना कीमत ज्यादा अदा की और वो भी वक्त से पहले दे दी। अब उसमें यह था कि इन्होंने इन हलकों से इलेक्शन जीतना है, आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल को वोट लेंगे ना। अब ख्वाहिशों और ख्वाबों पे पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वोट मिले तो बात करेंगे। फिर क्या अमर माने है इसमें, वोट क्यों नहीं मिलेंगे उनको? वोट इसलिए नहीं मिलेंगे कि ये सब अल्लाह की पकड़ में आए हो। और सर वो साबिक CM बलूचिस्तान के सेक्रेटरी पकड़ा गया है। हाँ जी, 68 करोड़ रुपए माहाना मुख्तलिफ महकमों से कलेक्ट करके मुबैना तौर पे वजीर आला जहरी की खिदमत में पेश किया करते थे वो, और ये अदायगी कराची में होती थी। आप सोचिए कि खुजदार में कितनी होगी, आप सोचिए कोयटा में, दुबई में, न्यूयॉर्क में, इस्लामाबाद में कितनी होगी। और जहरी साहब रहते भी ऊंची हवाओं में थे। बलूचिस्तान का होम मिनिस्टर कहता है कि 78% टाइम अपनी स्टेंट का जहरी साहब ने बलूचिस्तान से बाहर गुजारा। सर उन्हीं को निकालने पर सारा फटा पड़ा था जी, सरफराज भुगटी को। फुफी कुछ खाना है? खाना है मैं खा लांगी, तू मेरा अब्बा ना बन। सर साडी फुफी बड़ा चंगा आदमी है। तुम पता फुफी नाइया का काम ही कर लेंदा है। इसका जेंडर तो चेंज ना करो। और चाचा कह दो किधर हो, ये दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? ये तो खेड़ दी आवाज है। ले काका जिन्ना छेती हो सकता है फुफी लुकाओ, जल्दी करो। नहीं उठ, तू बैठी रह, तेरे को उठिया भी नहीं जाना। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
क्यों कर रहे हो सब कुछ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟ ਪਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਮਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ और दरवाजा तो खोलो। ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और चाचा ਹਾਂ ਹਾਂ ਖੇੜਿਆ। और यार दरवाजा तो खोल दो। ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਆ ਮੰਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਡੇ ਕਰਦੇ, ਆ ਜਾ। और यार क्या हो गया? और ये दरवाजा क्यों बंद किया हुआ? एहतियातन। और ये क्या? ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਨਾ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਖੰਗਦਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਦੱਸ ਨਾ ਦਈ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਨੇਟੋ ਆਈ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਖੇੜਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨੂਸ ਚੱਲਦੇ ਹਮਲੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। और यार आपको मिलने के लिए आया हूँ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖੇੜ ਦੀ ਛੱਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। वो कैसे? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਫੁੱਫੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰਦੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? और चाचा क्या दो कैसी बातें कर रहे हो यार? ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਵਾਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਆ ਫੁੱਫੀ अपना फोन ना साइलेंट पे कर ले, आज तो शिकायत कर से इन्हें मैंने मैसेज गलिया है। और किस फूफी की बात कर रहे हो? मैं हर फुफ्फी की बात कर रहा हूँ। ए मशीन में खंग लगी है। और ये कौन सी मशीन है जिसको खांसी लगी हुई है? अल्लाह का। और ये क्या है? ए मेरा नाना है, इन्होंने छेड़िए, बेचारा बीमार है। तो दिन रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंटिन्यूस रात आज का गाना हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। इसका मौजू था टिकटों की ब्लैक, जो सिनेमा टिकट्स होते हैं, और इस हवाले से ये बड़े सगीर की पहली फिल्म थी। अच्छा। जो इस मौजू पे बनी सुपर। चुनांचे तीनों आनंद ब्रदर्स का इस फिल्म में बड़ा रोल था। अच्छा। बहुत क्रिएटिव कॉन्सेप्ट था कि एक फिल्म है जिसका प्रीमियर हो, लातादाद एक्टर्स का आपको कैमियो मिल, शिरकत के लिए आ रहे थे। शो ये किया है, यानी वो फिल्म इसी में काम कर रहे थे। कहते 10-10 का 30, 10-10 का 30। पर लगता है तुसी भी ब्लैक कर दे रहे हो। क्यों? मेरा बेम्बिनो सिनेमा था कराची में। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सिमल्टेनियसली बेन हर मार्केट में आई, लेकिन इसके बावजूद, हालांकि होता ही कि एक बड़ी फिल्म आ जाए तो दूसरी अच्छी फिल्म दब जाती है, लेकिन इसने अपना तशख्खुस कायम रखा और बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यही गाना जो आज हम पेश करने जा रहे हैं, ये फिल्म शैतान में भी लिया गया, और शैतान वॉज अ सुपर फ्लॉप मूवी। सर फिल्म देखने वालों का भी एक अपना अपना ही शौक है। हाँ जी, बहुत सारे लोग मामूली सी फिल्म से बहुत मुतासर हो जाते हैं, और कई लोग बड़ी तगड़ी फिल्म देख के भी कहते हैं वो ठीक थी। नहीं, मेरे वर्गे नहीं। मुझे फिल्म पसंद आए तो मैं तारीफ करता हूँ, ना पसंद आए ये डायरेक्टर के घर पहुंच जाते हैं। सर वैसे आपको आज तक कौन सी फिल्म पसंद आई? मैं तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ मिट्टी ठीक था, लेकिन म्यूजिक एक गाना मौसीका। हर फिल्म के सारे गाने हिट नहीं होते, ये बहुत कम फिल्मों को एजाज हासिल है। हर फिल्म कश्मीर की कली नहीं होती, हर फिल्म मधुमती नहीं होती, हाँ मधुमती। हर फिल्म गाइड नहीं होती, हर फिल्म पाकीज़ा नहीं होती, आखिर ते उन्होंने कहना खुश रे, और हर फिल्म ही रांझा नहीं होती। और जनाब की उस सैनमे दा दौर हुंदा सी, हैं जी, एक पासे गनेरियां लगियां ने, कुआब लगे ने। ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ, उस सिनेमा की खास चीज याद हो गई। मुझे एक चीज बहुत फैसिनेट किया करती थी, वो सिनेमा के अंदर जो खुशबू होती थी ना, वाह, सिगरेट, पान, उसका एक अजीब इम्तिजाज था, उससे एक अरोमा पैदा होता था जो कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको याद हो उस जमाने में फैमिलीज का बड़ा ट्रेंड होता था जी, मूवीज देखना। जी जी, और इवन जो कैंटीन्स थी, कैफेटेरियाज बहुत शानदार होते थे, और लोग इसी बहाने फिल्म देखने आते थे, क्योंकि इतनी शानदार पेस्ट्री और कहीं नहीं मिलती। समोसे भी, ऑफ कोर्स, कबाब। मैं
बता सकता हूँ, ताज सिनेमा, क्राउन सिनेमा, यहाँ पे एक छोटे से साइज के कबाब्स होते थे, शामी कबाब, बहुत ही शानदार, और पेस्ट्री क्या बात है, और पेस्ट्री नाल क्रीम रोल भी हुंदा सी जनाब, भुल गए हाँ, क्रीम रोल भी। ये बेचदा हुंदा सी। सर मेरा आपसे एक सवाल है, ये बाहुबली आप कैसे देखते हैं फिल्म को? तुम खाम खा बाहुबली की मिट्टी पलीत करना चाहते हो? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आई है। बहुत पसंद आई ना? क्या उन्होंने गायें दिखाई हैं उसके अंदर, दगड़ा दगड़ा दगड़ा? गायें नहीं थे, बैल थे वो गायें। बड़ी कस्मा पुरसी इसी से आया है कि बैलों को तुम गाय समझ रहे हो, बैल मुन्नस नहीं होती। अच्छा हुण इत्थे फरंगे आसफिया ना खोल लेना। बैल मुजक्कर होता है भाई, इसको पंजाबी में टग्गा कहते हैं, यस यस, उर्दू में बैल कहते हैं, अंग्रेजी में ऑक्स कहते हैं, याक भी इसी की किस्म है। और भी दसो कोई। बाइसन भी इसी से निकला। ओ बाबा तू किसे दुम्बे का ही जिक्र कर दे। नहीं सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसका म्यूजिक आपको कैसा लगा? मुझे याद नहीं कि उसके अंदर म्यूजिक भी था कुछ। उसका साउंड बहुत खूबसूरत है, क्योंकि टेक्निकली ऐसी फिल्में बड़ी रिच होती हैं, और जो उसने तीन कहीं थोड़ी बहुत सिनेमेटोग्राफी है उसमें इन्वॉल्व, बस वो नहीं तुसी वेखे जेड़ा वड्डा सारा वट्टा चुक के कल्ला ही गया है। हाँ जी, और डैम तोड़िया की पानी। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और आज क्या मौजूद है जनाब आबिद फरूक साहब? हमारी यूनिवर्सिटियों की ज़बूं हाली, पूरे निजाम तालीम की ज़बूं हाली कहिए। ये अकेली यूनिवर्सिटियों की नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटियां पता नहीं चल कैसे रही हैं। पूरे प्लेनेट पर शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिसकी 21 यूनिवर्सिटियां गुज़श्ता बरस बगैर वीसी के काम करती रही पूरा साल, और उनमें से 15 यूनिवर्सिटियां पंजाब में। आप देखिए ये रीसेंट डिबैकल जो हुआ है, मैं तो समझता हूं कि बड़ा जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। ये जो वाइस चांसलर ने रिजाइन किया एक बात पे स्टैंड लेते हुए जी, और हमने खराज तहसीन पेश किया, तो अकल के उन अंधों ने, इस हुकूमत के कारिंदों ने, जिस हुकूमत पर बेहिसी की दबीज तय जमी हुई है, बड़ी ढिठाई के साथ वो इस्तीफा कबूल कर लिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे नहीं जनाब हम इसका कुछ मुतबादिल सोचते हैं, वीसी साहब आप वापस तशरीफ लाएं। और आप अंदाजा नहीं कर सकते किस कदर दिल शिकनी हुई स्टूडेंट्स की, यार इतना इजी लिया जाता है। तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है बच्चों कि आपके यहाँ तालीम को, तालीमी इदारे को और मुअल्लिम को किस कदर इजी लिया जाता है। कुछ अरसा पहले की बात है, अय्याज अमीर साहब चीफ मिनिस्टर के साथ किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे गए, तो कहते मैं हैरान रह गया देख के कि वाइस चांसलर को चौथी सफ में बिठाया गया था। क्यों? आगे वो नाम नेहाद बदबूदार कैरेक्टर्स, सारे के सारे मुताफन कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी तरफ बखुदा दूसरी मर्तबा देखने को दिल नहीं चाहता। क्यों? अल्लाह ताला ने उनकी रौनक और बदउनवानी की वजह से ऐसी फिटकार डाल रखी होती है, वो आगे सोफों पे बैठे हो, फिर दूसरी सफ में उनके हाशिया बरदार, उनसे पिछली सफ में उनके टोडीज, और फिर असातिज़ा कराम। तो कहते हैं याज अमीर कि मैंने चीफ मिनिस्टर से गुजारिश की, इन्हें चौथी सफ में आपने बिठा रखा है, ये वाइस चांसलर है, इन्हें उठाएं और पिछली सफ में बिठाएं, इनकी क्या मजाल बेचारे आगे से बोल दें। चीफ मिनिस्टर समझ गया इशारा, वो कहने लगे पहले तो उन्होंने यूं किया होगा, फिर उन्होंने ऐसे ही खाम खा 3-4 लोगों के पैरों तले से जमीन निकाली होगी और कहा होगा कि इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं चुप। भाई आपका ताल्लुक इसलिए बनता है कि आप सरबराह हैं, आप एक मिसाल कायम करें। आप आते ही पूछे कि मेरे साथ वाली कुर्सी पे कौन बैठा है, वाइस चांसलर बैठा है कि नहीं बैठा, आपको अंदाजा हो कि वाइस चांसलर क्या है, तब आप बिठाए ना उसके साथ। और यकीन कीजिए ये इज्जत अफजाई आपकी है अगर आपके साथ वाइस चांसलर बैठा है। जी, एक जगह है NARC, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, इस्लामाबाद में। इस मस्कीन के 1400 एकड़ हथियाने लगी थी ये हुकूमत। ये तो शुक्र है अदालत बीच में पड़ गई, क्या खबरदार, हैंड्स ऑफ। इसी तरह आपकी अदालत ने बेशुमार इदारों को बचाया है। काश ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हुआ होता। वो इदारे जो मर गए हैं, हमारे वो खेल जो मर गए हैं, हमारी हॉकी, वो हॉकी जिसमें 90% गोल्ड हमारे पास आता था, आज हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। दिल खून के आंसू रोता है जब उस स्क्वाड में, जब ओलंपिक्स की
ایک پریڈ ہو رہی ہوتی ہے جب ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی ٹیم ہی نظر نہیں آتی وہاں پہ. یعنی ہاکی ہمارے لیے وہ کچھ تھی جو برازیل کے لیے فٹ بال یا کافی ہے جی جو ان کی پہچان ہے. لیکن دیکھ لیں ہم اس سے محروم. ہم نے ایجوکیشن کو عضو معطل خود بنایا ہے. نیچرلی پھر ہمارے ہاں استاد کی عزت بھی وہی ہے جو تعلیم کی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گورنمنٹ کالج میں مشرف انصاری ایک بڑے بزرگ پروفیسر ہوا کرتے تھے, اردو پڑھاتے تھے ہمیں. ہم ان کے کمرے میں ہی بعض اوقات تھوڑے سٹوڈنٹس ہوتے تو کلاس پڑھ لیتے. کلاس میں بیٹھے تھے تو ایک خط آیا تو وہ دیکھتے ہوئے مسکرانے لگے اور بڑی افسوسناک طنزیہ مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی. میں نے پوچھ لیا کہ سر یہ ممکن ہے کہ آپ ہمیں بتائیں, شیئر کریں کہ یہ کیا تھا. کہتے ہیں یہ سیکشن افسر نے ہمیں بلا رکھا ہے کہ کسی الیکشن ڈیوٹی سے متعلق آ کر حاضر ہوں میں فلاں فلاں چیز پر سائن کریں اور یقین دہانی کروائیں کہ آپ اس دن فلاں فلاں جگہ پہ ہوں گے. یہ ایک معمولی سیکشن افسر گریڈ 20 کے پروفیسر کو یہ کہہ رہا ہے. دیکھیں تو جہاں پہ یہ صورتحال ہوگی وہاں پہ تعلیم پھر ویسے ہی ہے جیسی کہ آپ کو نظر آتی ہے. اب آپ کمپیرزن کریں برطانیہ اور امریکہ میں ایک وائس چانسلر کی ڈگنیٹی, اس کی ٹور, اس کا ٹیکا کسی گورنر سے کم نہیں ہوتا. اور پھر اپنے میں اور ان میں فرق بھی دیکھیں جو صاف ظاہر ہے. فوتین حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. فوتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج کا ضلع ہے جہلم. اسے شہداء کا ضلع بھی کہتے ہیں. یہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور اس ضلع کی خوبصورتی میں جہاں پوٹھوار کی سرزمین کا بڑا ہاتھ ہے وہاں دریائے جہلم کا بھی ایک رول ہے. سن 326 قبل مسیح میں جب سکندر نہ چکوال میں بلکہ وہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں ہے اور اس میدان کا نام ہے ٹبا مونگ. ٹبا مونگ. ٹبا مونگ. مونگ نہیں ہوتا مونگ کی دال, جی جی ٹبا مونگ. میں اسپیشلی یہ میدان کارزار دیکھنے گیا تھا اور سخت مایوس ہوا تھا. کیوں سر؟ اس لیے کہ منڈی بہاؤالدین پہنچنا بذات خود کافی مشکل کام ہے. یہ نہ اس طرف سے قریب ہے نہ اس طرف سے قریب ہے. آپ کو یاد نہیں میں نے سسکاٹون والوں کو کیا کہا تھا کینیڈا میں کہ آپ کینیڈا کا منڈی بہاؤالدین ہے. اچھا جی, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جہلم کو جہلم کیوں کہتے ہیں؟ اور جل ہم, یہ جل ہم ایک ورژن ہے, یعنی جل پانی اور ہم میٹھا, یعنی برف کو بھی کہتے ہیں, مطلب ٹھنڈا میٹھا پانی. اور دوسرا جائے علم, یا جائے اس کو جا کیونکہ پنجابی میں جگہ کو جا کہتے ہیں, اینڈ پہ ہے جا, تو ہے اس لیے آ گیا. جائے علم کے بیچ میں ہے جا کی وجہ سے آ گیا, یعنی علم و فضل کا مقام. اس کی 4 تحصیلیں ہیں, پنڈ دادن خان, سہاوا, دینا اور جہلم. یہاں کے آثار قدیمہ میں قلعہ منگلہ, میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں پہلے بھی, یہ منگلہ لیک کے دوسری یونڈر سائڈ پر واقع ہے اور خشکی کا راستہ وہاں پہنچنے کے لیے نہیں ہے. اب آپ کو یاد آیا میں نے جب 2 انتہائی خوفناک قلعوں کا ذکر کر رہا تھا تو ان میں سے ایک یہ تھا اور اتفاق سے دوسرا بھی جہلم میں ہی ہے, اس کا نام ہے نندنا, جسے ہمیشہ میں کم از کم کنفیوز تھا, اسے چکوال میں سمجھتا تھا. یہ پنڈ دادن خان میں ہے اور چکوال کی باؤنڈری سے ٹچ کرتی, اسی لیے کنفیوژن ہے. اور اس قلعے کی 2 خصوصیات ہیں. ایک تو سٹیپ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے, یہاں پہنچنا ہی بہت مشکل, لیکن ہیں ایسے ایسے جوان مرد جو پہنچ جاتے تھے. محمود غزنوی نے اس قلعے کو سر کیا تھا. اور پھر شہاب الدین غوری, اس کا مقبرہ یہاں پہ ہے. اور نندنا کی دوسری خصوصیت, یہاں بیٹھ کر البیرونی نے زمین کا قطر دریافت کیا تھا کہ اس کا سرکمفرنس کیا ہے. پھر یہاں پہ قلعہ روہتاس, میرے ہیرو شیر شاہ سوری کی یادگار. پھر جناب جوبلی گھاٹ. جوبلی گھاٹ ایک بڑا خوبصورت میدان ہے جسے یادگار کے طور پہ تعمیر کیا گیا. یہ جارج پنجم کی تاج پوشی کو کمیموریٹ کرنے کے لیے یہ دھنپت رائے نے اسے تعمیر کروایا. یہ ایک طویل عرصے تک عوامی جلسوں کے کام آتا تھا
यहाँ पर भुट्टो साहब ने भी जलसा किया, कायदे आजम ने जलसा किया, फातिमा जिन्ना ने किया। फिर बहुत कम लोग शायद जानते हों कि तारीखी अहमियत का हामिल हीरा कोहे नूर एक तवील अरसा तक इसी शहर में रहा। ये महाराजा रंजीत सिंह की सास सदा कौर के पास रहा और जब अंग्रेज ने टेक ओवर किया तो उसके नवासे ये दिलीप सिंह इंतहाई कमसन, बहुत छोटा था, रंजीत सिंह का बेटा, ये उसके पास था। तो अंग्रेज इसके समेत हीरा भी अपने साथ विलायत ले गए। अच्छा जी, फिर है खेड़ा माइंस। हाँ जी, खेड़ा माइंस कुछ याद आया? ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਨਮਕ ਚਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ओ हमने वहां पे शो किया था घोड़िया का बच्चा। ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਚਟਿਆ। फिर है टिल्ला जोगियां। टिल्ला जोगियां की वजह शोहरत फायरिंग रेंज है, पाकिस्तान आर्मी की नहायत शानदार रेंज है जहां पर फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा में भी टिल्ला जोगियां का तस्करा है जहां पर रांझे ने अपने कान बिदवाए थे। अच्छा जी, मशहूर शख्सियात इंदर कुमार गुजराल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो जेलम से थे और बहुत याद करते थे अपनी जन्मभूमि को। वैसे ही याद करते हैं गुलजार साहब। फिर एक और मशहूर फिल्मी शख्सियत देवानंद। नो, देवानंद वाज फ्रॉम नारोवाल। अच्छा। सुनील दत्त। अच्छा। इस हिसाब से ये फिल्म स्टार नरगिस का ससुराल और संजय दत्त का ददयाल है। एक और शख्सियत, मशहूर शख्सियत, जमीर जाफरी, बड़े बाकमाल शायर सैयद जमीर जाफरी। सर उनका मास्टरपीस क्या है? माफियुज जमीर उनकी किताब है, इंतहाई शानदार नज्म है पुरानी मोटर। पुरानी मोटर जिसका रोना रोते हैं वो और कह रहे होते कि बस धक्का स्टार्ट थी, तो वो उसके लिए लाइन है कि अक्सर जोरे दस्ते दोस्ता ही काम आता है। फिर एक और खुशगवार शायर जोगी जेल में। जोगी जेल। अब आइए जनाब ख्वाबों की तरफ। प्लीज सर। शाही मुर्गे मुसल्लम, हालांकि मुसल्लम गलत है, मुसल्लन लफ्ज है, जो फ्राई किया हो। मुर्गे मुसल्लम, इसमें अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब इमली के पानी में रचाकर फ्राई किए जाते हैं। फिर कलेजी, गुर्दे और दिल ये फ्राई करके मुर्ग के पेट में स्टफ किया जाता है इन्हें और एक तरफ से सी दिया जाता है। सर जैसे टर्की एक डिश होती है वो भी? जी, टर्की, स्टफ टर्की इसी तरह होता है। फिर इसको बहुत बड़े देचके में स्टीम, ये स्टीमिंग और फ्राइंग दोनों का इम्तजाज है और उस दौर के महाराजा इसके बगैर यूं समझिए कि खाना ही नहीं खाते। महाराजा साहब की रेडी भी सी होती। फिर एक और डिश है, एक दरिया के किनारे पे होटल है, ट्यूलिप उसका नाम, उसकी मछली, वो फ्रेश वाटर की, जेलम की मछली वैसे बड़ी शानदार होती है, लेकिन जेलम की मछली खाने के लिए आप मंगला लेक वहां पे जाइए। मंगला, ये मीरपुर में एक होटल था, पता नहीं आजकल है कि नहीं, कोई तकरीबन 15 साल पहले मैं गया था। रुपयाल नाम था उस होटल का और क्या शानदार मछली थी। ये लेक की मछली थी, ताजा। ये जो दरिया के किनारे होटल है, इसकी मछली बहुत लजीज, शानदार, लेकिन वो 40% है, 60% वो एम्बियंस है जो दरिया के किनारे। अगर रात है तो उसका और एक नशा है, दिन है तो और मजा, और शाम तो बहुत ही खूबसूरत होती है। सुरमई और नारंगी दोनों रंग आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और बैकड्रॉप ग्रीन है पोठवार का। सर वो मछली मैंने खाई हुई है। इस गल का इन्होंने जुर्माना भी होया सी। सर अक्सर मैं वो शाम का मंजर वहां देखता हूँ। उस मंजर ने फिर तेन नहीं वेख्या होना। आप उस होटल में ठहरे थे मिर्जा साहब? जी मैं होटल में ठहरा हूँ। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ ठहरने वाला काम नहीं है। ये रेस्टोरेंट भी ठहर गया। सर आपने बेस्ट फिश कहाँ खाई? कनाडा में। अच्छा जी, साढ़े तो चोरी भी खाते रहे। तो जी नुसरत, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।